بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس کو جھاڑو دینے پر اللہ کا دردناک عذاب ملا، کیونکہ جھاڑو دینے سے تو صفائی ہوتی ہے اور صفائی اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی اس عورت کو قبر کے اندر اللہ کا خوفناک اور بھیانک عذاب کیوں ملا؟ ناظرین، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں، جہاں زندگی سادگی اور محنت کا دوسرا نام تھی، ایک مسلمان عورت رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کا پیشہ جھاڑو دینا اور صفائی کرنا تھا۔ وہ گاؤں کی گلیوں اور ایک چھوٹی سی مسجد کی صفائی کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھی۔ عالیہ کے دل میں اللہ کی محبت اور عزیزی کا جذبہ تھا، جس نے اسے اپنے کام کو عبادت سمجھنے کا ہنر سکھایا تھا۔ عالیہ کا شوہر اسلم ایک دیانتدار اور محنتی آدمی تھا۔ وہ ایک مستری تھا اور گاؤں کے قریب واقع یہ تعمیراتی مقام پر کام کرتا تھا۔ اسلم اپنی بیوی اور بچوں کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور ان کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا تھا، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ ایک دردناک موڑ لیا۔ ایک دن اسلم اپنی کام کی جگہ پر ایک اونچی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھا۔ وہ دیگر مزدوروں کے ساتھ مل کر عمارت کی ستون ٹھیک کر رہا تھا جب اچانک ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ عمارت کا ایک بھاری بھیم یعنی لوہے کا ستون غلطی سے اس کے اوپر گر گیا۔ مزدوروں نے فوری مدد فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن زخم اتنے شدید تھے کہ اسلم اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ اس حادثے نے عالیہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ عالیہ پر یہ حادثہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسلم کے انتقال کے بعد وہ خود کو بے یار اور مددگار محسوس کرنے لگی، لیکن جلدی ہی اس نے اپنے بچوں اور اپنے مقصد کے لیے اپنی کمر کس لی۔ اس نے مسجد کی صفائی کے لیے اپنے کام کو جاری رکھا اور لوگوں کے گھروں میں بھی جھاڑو موٹے کام شروع کر دیے۔ گاؤں والوں نے اس کی محنت اور صبر کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ عالیہ نے اپنی مشکلات کو اپنے ایمان اور حوصلے سے شکست دی۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے دن رات محنت کی۔ اب اس پر اپنے 2 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ صبح کے اذان کے ساتھ وہ بیدار ہو جاتی، بچوں کو ناشتہ کرواتی اور اپنے کام پر نکل پڑتی۔ اس کے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتا اور دل میں دعا۔ مسجد کی صفائی اس کے لیے ایک مقصد فریضہ تھا۔ وہ کہتی، یہ اللہ کا گھر ہے اور مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں اس کی خدمت کر سکوں۔ وہ روزانہ مسجد کے سن کو دھوتی اور منبر کے گرد صفائی کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں جو محبت اور خلوص تھا وہ گاؤں والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ عالیہ کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی محنتی، دیانتدار اور خوش اخلاق عورت تھی۔ جو کوئی بھی اسے مسجد کی صفائی کرتے دیکھتا، اس کے دل میں عالیہ کے لیے احترام بڑھ جاتا۔ لیکن عالیہ کی زندگی آسان نہیں تھی۔ غربت اور تندرستی کے باوجود اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ کہتی، محنت میری عبادت ہے اور اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ عالیہ کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بنے اور اس کی بیٹی کو علم کی دولت ملے۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے خود بھی وقت نکال لیتی، حالانکہ اس کی اپنی تعلیم محدود تھی۔ اس کی لگن نے اس کے بچوں میں بھی ہمت اور خودداری کا جذبہ پیدا کیا۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب نے عالیہ سے کہا، عالیہ بہن، تم نہ صرف مسجد کی صفائی کرتی ہو بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی دیتی ہو۔ یہ الفاظ عالیہ کے لیے باعث حوصلہ بنے اور اس نے اپنے کام کو پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ انجام دینا شروع کیا۔ مسجد کی صفائی اس کے لیے محض روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اسے ایک مقصد فریضہ سمجھ کر اپنایا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی محنت اور لگن کی تعریف کرتے تھے، لیکن عالیہ کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو کسی کو معلوم نہ تھا۔ عالیہ مسجد کی صفائی کے دوران پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ کبھی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہو
जाती और कभी बगैर वजू के मुसल्ला और सन की सफाई कर देती। आलिया को मालूम था कि दीन इस्लाम में पाकी और तहारत को बहुत अहमियत दी गई है, खास तौर पर मस्जिद जैसे मुकद्दस मुकाम के लिए, लेकिन वो अपनी लालमी और गुफलत की वजह से इन उसूलों को नजरअंदाज करती रही। आलिया का मानी था कि इसकी नीयत खालिस है और वो अल्लाह के घर की खिदमत कर रही है। इसके नजदीक सफाई का मतलब सिर्फ गंदगी को दूर करना था और वो ये समझती थी कि इसका अखलास इसकी खताओं को छुपा लेगा। लेकिन दिन के उसूल सिर्फ नीयत और अखलास पर बने नहीं होते, इन पर अमल करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि खुलूस नीयत। इस्लाम में सफाई को नसफ ईमान करार दिया गया है। पुराने मस्जिद और हदाइस में पाकीज़गी की बार बार ताकीद की गई है। मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है और इसकी पाकीज़गी को बरकरार रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। पाकी के बगैर मस्जिद में दाखिल होना और वहाँ कोई काम करना दीनी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन आलिया इस बात को नजरअंदाज करती रही और ये कहकर बात को टाल देती थी कि मेरी नीयत खलास और साफ है। लेकिन ये बात इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुकद्दस मुकाम यानी मस्जिद के उसूलों के खिलाफ है। एक दिन जब आलिया मस्जिद की सफाई कर रही थी, गाँव के इमाम साहब अचानक वहाँ पहुँच गए। इमाम साहब फजर की नमाज के बाद किसी काम से मस्जिद वापस आए थे। इन्होंने आलिया को मस्जिद के सन में झाड़ू देते हुए देखा और फौरन महसूस किया कि वो नापाकी की हालत में है। इमाम साहब ने ये बात महसूस करते ही आलिया को रोका और नरमी से पूछा, बेटी क्या तुम जानती हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है और यहाँ दाखिल होने के लिए पाकी और तहारत का होना जरूरी है। आलिया ने झिझकते हुए कहा, मौलाना साहब मैं जानती हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसकी सफाई करना एक मुकद्दस फरीज़ा है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त और वसाइल नहीं होते कि मैं हर वक्त पाकीज़ा हालत में रहूं। मैं अपनी नीयत की पाकीज़गी पर भरोसा करती हूँ और समझती हूँ कि अल्लाह मेरे अखलास को देखता है। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बेटी नीयत की पाकीज़गी अपनी जगह अहम है, लेकिन दिन के उसूल भी इतने ही जरूरी हैं। सफाई के दौरान नापाकी की हालत में मस्जिद में दाखिल होना और काम करना एक बड़ी गफलत है। ये न सिर्फ तुम्हारे अमल के अजर को मुतासिर कर सकता है, बल्कि तुम्हें कब्र के अजाब का भी सामना हो सकता है। आलिया इमाम साहब की बात सुनकर चौंक गई। इसने अजीब लहजे में गुस्से से पूछा, मौलाना साहब क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मस्जिद में नापाकी की हालत में काम करना कब्र के अजाब का सबब कैसे बन सकता है? इमाम साहब ने निहायत शफकत के साथ वजाहत करते हुए कहा, मस्जिद जैसा मुकद्दस मुकाम जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इसे पाकीज़ा रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में मस्जिद में दाखिल होता है या वहाँ कोई काम करता है तो ये न सिर्फ दीन के उसूलों के खिलाफ वर्जी है, बल्कि अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था, कब्र में सबसे ज्यादा अजाब पेशाब की नजास्त लापरवाही की वजह से होगा। अगर हम मस्जिद की सफाई के दौरान पाकी का ख्याल ना रखें तो ये गफलत बड़ी संगीन हो सकती है। लेकिन आलिया ने इमाम साहब की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और अपने इस गलती को बार बार करती रही। इमाम साहब के अल्फाज इसके दिल पर असर नहीं कर सके। एक दिन आलिया अपने मामूल के मुताबिक मस्जिद में सफाई कर रही थी। वो नापाकी की हालत में झाड़ू लगा रही थी और अपने काम में मगन थी। इसी दौरान गाँव में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आलिया के जिंदगी का इख्तिताम साबित हुआ। आलिया सफाई करते हुए अचानक गिर गई। गाँव के लोग दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आए और इसे फौरन तबीबी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन आलिया की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। ये एक मामूली हादसा मालूम हो रहा था, लेकिन आलिया की हालत की शिद्दत ने सबको चौंका दिया। इसके जिस्म में तेज बुखार था और वो बेहोश हो चुकी थी। जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया गया, इसकी हालत मस्जिद बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की और गाँव में एक सनसनी फैल गई। आलिया का इंतकाल एक अचानक हादसा था जिसने सबको गमगीन कर दिया। गाँव के लोग इसके जनाजे
जनाजे में बड़ी तादाद में शरीक हुए और इसे बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ दफन किया गया। लेकिन दफनाने के बाद कब्रिस्तान में अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे। हर रात औरत की कब्र से अजीब सी आवाजें आने लगी और लोगों ने ये महसूस किया कि इसकी कब्र हिल रही है, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। गाँव की एक नेक और पारसा इंसान ने ये मामला समझने के लिए दुआ की और ख्वाब में इस औरत की हालत देखी। ख्वाब में इसने देखा कि वो औरत अजाब में मुब्तला है, इसके जिस्म पर जंजीरें हैं और इससे आग निकल रही है। इस इंसान ने पूछा, तुम्हें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तुम तो मस्जिद की सफाई करती थी और लोग तुम्हें नेक समझते थे। औरत ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं मस्जिद की सफाई करती थी, लेकिन मेरा दिल गुरूर से भरा हुआ था। मैंने कभी किसी बात का ख्याल नहीं रखा कि मेरा काम अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए। मैंने सफाई करते वक्त नापाकी का ध्यान नहीं रखा और कई बार ऐसी चीजें मस्जिद के अंदर छोड़ दी जो नापाक थी। मेरा गुरूर और लापरवाही मेरे लिए अजाब का बास बन गई है। इमाम साहब ने अपना ये ख्वाब गाँव के लोगों के सामने बयान किया और इन्हें कहा कि मैंने आलिया को समझाया था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अल्लाह का इस पर एक खौफनाक अजाब नाजिल हुआ है। ख्वाब में इमाम साहब ने देखा कि आलिया अपने गलती पर शर्मिंदा थी और इसने तौबा करने का इरादा किया। इमाम साहब ने दिल से दुआ की कि अल्लाह आलिया की मगफिरत करे और इसे अजाब से निजात दे। इमाम साहब ने आलिया की तौबा की दावत दी और ख्वाब की तफसील गाँव के लोगों के साथ शेयर की। इमाम साहब ने कहा, आलिया ने सच्चे दिल से अपने गलतियों का एतराफ किया है और अल्लाह के सामने अपनी तौबा पेश की है। दिन में पाकीज़गी के उसूलों को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ नीयत की पाकीज़गी काफी नहीं है, बल्कि अमल में भी पाकीज़गी जरूरी है। आलिया ने इमाम साहब के ख्वाब में आकर अपनी तौबा का इरादा किया। इसने अल्लाह के सामने अपने गाँव का एतराफ किया और इसे माफी मांगी कि तौबा न सिर्फ इसके अजाब को कम करने का सबब बनी, बल्कि इसकी तौबा ने गाँव के लोगों को भी अपने आमाल पर गौर करने की तरगीब दी। गाँव के लोग इमाम साहब की रहनुमाई में आलिया की मगफिरत के लिए दुआएं करने लगे। वो जान गए कि अगर आलिया की तौबा कबूल हो सकती है तो वो भी अपनी जिंदगियों में हौसला कर सकते हैं। इमाम साहब ने कहा, जो लोग अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते ही अल्लाह इन्हें माफ कर देता है। हमें तौबा की एक हकीकत समझनी चाहिए कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला होता है और इसके रास्ते पर चलना ही हमारी फलाह की जमानत है। आलिया की तौबा की कहानी एक बड़ी इबरत का पैगाम है। इसने अपनी गलतियों का एतराफ किया, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और इसके बाद अल्लाह की रहमत से निजात पाई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें तो अल्लाह हमसे दरगुजर करता है। नाजरीन, आज का वाक़या आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।